BBC اردو کے پروگرام سے عربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی. PMLN کا ایک اور بجٹ. ہر سال لوڈ شیڈنگ میں کمی کے وعدے بھی ہوتے رہے لیکن اب تک بہتری کیوں نہ آئی؟ سال کے آخر میں لوڈ شیڈنگ کا انشاءاللہ تعالی مکمل خاتمہ ہو جائے گا، لیکن جو لوگ ہمیں بل نہیں ادا کرتے ہیں ان کو بجلی نہیں بیچیں گے. شدت پسند گروہ اور شباب کے ہاتھوں غلام بنائی جانے والی خواتین نے کیا کیا دکھ اٹھائے؟ اور کیا دبئی کا روبوٹ پولیس آفیسر قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں پر جرمانہ بھی کر سکتا ہے؟ پاکستان کے وزیر خزانہ مسٹر اسحاق ڈار نے آئندہ مالی سال کے لیے قومی بجٹ آج پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیا. انہوں نے اپنی تقریر کے دوران مختلف شعبوں کے لیے بجٹ مختص کرنے کے علاوہ مراعاتی پیکیجز اور ریلیف کے اقدامات کا اعلان بھی کیا. ان کی مختصر تفصیل بتانے کے لیے اسلام آباد سے نامہ نگار آصف فاروقی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آصف فاروقی، کیا خاص باتیں ہیں اس بجٹ کی؟ شفیع، ویسے تو اگر اس بجٹ پہ تفصیل بتانے بیٹھیں تو کئی گھنٹے درکار ہوں گے، لیکن اگر ایک دو باتوں کی آپ بات کریں تو جیسا کہ نواز شریف حکومت کا ہمیشہ سے فوکس رہا ہے توانائی پر، اس دفعہ بھی وہی فوکس نظر آتا ہے کہ جو ترقیاتی بجٹ ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ توانائی اور انفراسٹرکچر یعنی بجلی کے منصوبے اور سڑکیں وغیرہ پر انہوں نے اس کو فوکس رکھا ہے. اس کے علاوہ زراعت کے شعبے کو بھی توجہ دی گئی ہے. وہاں پہ جیسے کہ کچھ سبسڈیز دی گئی ہیں، کھاد کی قیمت برقرار رکھنے کا کہا گیا ہے، کسانوں کے لیے مراعات کا اعلان کیا گیا ہے. اس کے علاوہ دفاعی بجٹ جو ہے اس کو 9% بڑھایا گیا ہے، جو کہ پاکستان میں افراط زر سے مطابقت رکھتا ہے. پچھلے سال بھی ایسا ہی ہوا تھا. اس کے علاوہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں جو ہیں ان پہ 10% اضافہ کیا گیا ہے، لیکن اس کا امپیکٹ اس سے زیادہ ہوگا. سرکاری ملازمین کے علاوہ جو فوجی ملازمین ہیں ان کے لیے مزید الگ سے 10% کا اضافہ کیا گیا ہے. اور اسی طرح حکومت نے جو ہے وہ کچھ بعض طلباء کے لیے بھی کچھ چھوٹی موٹی برآت کا اعلان کیا، لیکن وہ بہت زیادہ افیکٹو نہیں ہوں گی تعلیم کے شعبے کے لیے. تو آصف فاروقی، آج کے بجٹ میں کوئی نئے ٹیکس وغیرہ؟ دیکھیے شفیع، اب پاکستان میں کچھ گزشتہ سالوں سے یہ روایت بن چکی ہے کہ جو اچھی باتیں ہوتی ہیں وہ تو بہت بڑھا چڑھا کے بیان کی جاتی ہیں تقریر میں، لیکن جو مشکل فیصلے ہوتے ہیں جیسے نئے ٹیکسز وغیرہ ان کو یا دبا دیا جاتا ہے یا ذکر ہی نہیں کیا جاتا یا گول مول ذکر کرتے ہیں تاکہ کچھ بات سمجھ میں آئے کچھ نہ آئے. آج کی تقریر سے جو اندازہ لگایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو حکومت موجودہ ٹیکسز ہیں ان کی شرح میں شاید کچھ اضافہ کر رہی ہے. بعض ٹیکسز میں اسٹاک مارکیٹ کو فوکس کیا جا رہا ہے، حکومت کا خیال ہے وہاں سے مزید اس کو آمدن ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ جس کو نان اسینشل آئٹمز حکومت کہتی ہے جیسے سگریٹ ہیں یا امپورٹڈ سامان ہے، اس پہ شاید وہ ٹیکسز بڑھائیں گے. اس کے علاوہ کچھ ٹیکسز میں ریلیف کی بھی بات ہو رہی ہے، جس میں جو ہے وہ سب سے نمایاں جیسے موبائل فونز ہیں ان پر ٹیکسز جو ہے اس پہ کمی کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ صنعتوں کے خام مال پر ٹیکسز میں کمی کی جا رہی ہے اور زرعی مشینری کے لیے ٹیکسز پہ کچھ چھوٹ دی جائے گی. آصف فاروقی، بہت بہت شکریہ. آج پیش ہونے والا وفاقی بجٹ عوام کی توقعات پر پورا اترا ہے یا نہیں؟ لاہور سے BBC کی نامہ نگار حنا سعید نے تاجروں سے بات کی اور ان کے تاثرات جاننے چاہے. اس وقت ہم موجود ہیں لاہور کی ہال روڈ پہ اور یہاں پہ تاجران ہمارے ساتھ ہیں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا اس بجٹ نے ان کی توقعات پوری کی یا پھر وہ ناراض ہیں حکومت سے. جی بتائیے گا، کیا توقعات تھیں آپ کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو میں نے بجٹ دیکھا ہے وہ ایک متوازن بجٹ ہے، وہ تاجر دوست بجٹ ہے. اس میں موبائل کی اور کافی چیزوں کی کم کی گئی ہیں. ریلوے کو کے لیے بجٹ رکھا گیا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو ٹیکسز ہیں وہ بھی کم ہوں گے اور عوام کو ریلیف اگر ملے گا تو عوام خوش ہوں گے. اگر یہ ٹیکسز میں یا پرائسز میں بڑھائیں گے تو عوام اٹھ کھڑے ہوں گے. میں یہی امید رکھوں گا کہ بجٹ جو ہے اس وقت تک تو ٹھیک ہے، کہیں ضمنی بجٹ نہ آ جائے، نہ کوئی پٹرول نہیں بڑھنا چاہیے. تو اس میں امید ہے کہ انشاءاللہ آگے جیسے انہوں نے بتایا کہ لوڈ شیڈنگ کا اس ٹائم دردناک مسئلہ بنا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو یہ خریداری میں پٹرول کا اور ریلوے کا اس میں بجٹ جو انہوں نے مختص کیا ہے، تو امید ہے کہ اسی پہ ہی وہ لوگ لگائیں اور اس کو جو ہے جس سے اچھا انڈسٹری کو ڈیولپمنٹ ملے اور جو عام جو قیمتیں ہیں وہ بھی اس کو متوازن رکھیں. تو وہ انشاءاللہ ہے کہ وہ صحیح ہے بجٹ.
पाकिस्तान के आइंदा माली साल के बजट के तनाजुर में जिक्र माशी बेहतरी के उन वादों का भी हो जाए कि जो मुस्लिम लीग की हुकूमत गुज़िश्ता 4 साल से अवाम से करती चली आई। इनमें सबसे अहम बिजली के बहरान का खात्मा था। तमाम तर हुकूमती दावों और वादों के बावजूद आज भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 12 घंटे तक की लोड शेडिंग होती है। मौजूदा हुकूमत इस लोड शेडिंग को अब तक ख़त्म क्यों न कर सकी? इस्लामाबाद से फरहत जावेद की रिपोर्ट। टेक्सला के रिहायशी जाफर अब्बास की आइसक्रीम फैक्ट्री में उस वक्त तक मशीनें चलती हैं जब तक बिजली मौजूद रहे। हम अगर अपनी फिनिश गुड ना भी बेचें, हमें प्रिजर्व करने के लिए भी बिजली चाहिए होती है, हम उसके बगैर रख नहीं सकते। तो अब जिस तरह अप्रैल गुजरा है इसमें 18 घंटे तक लोड शेडिंग होती रही है। उस लोड शेडिंग के दौरान हमारी प्रोडक्शन कास्ट राउंड अबाउट 200% या 300% बढ़ जाती है। मौजूदा हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला तो तयशुदा अहदाफ में एक मुल्क भर में बिजली की तलब और रसद में फ़र्क का मुकम्मल खात्मा था, मगर हुकूमती अदाद शुमार के मुताबिक 2013 में बिजली की औसतन कमी 5000 मेगावाट से ज़ायद और 2017 में 4000 मेगावाट है। इसी साल अप्रैल में बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट तक पहुँच गया। तो फिर बेहतरी क्यों नहीं आई? 6000 मेगावाट डिमांड बढ़ी है और तकरीबन 5500 जो है हमने उसमें ऐड की है, तकरीबन 17,500 जो है हमने जनरेट की है। अगर आप गैप टू जनरेशन रेशियो देखें तो वो ड्रेस्टिकली इम्प्रूव हो गई है। माहिरीन कहते हैं कि इक़्तिदार में आने वाली हर हुकूमत ने मसले का फौरी हल चाहा और बुनियादी नौइयत के मसाइल के देरपा हल की जानिब कोई तवज्जो ना दी। बिजली की तरसील का ये निज़ाम भी उन्हीं मसाइल में से एक है। नाकिस ट्रांसमिशन लाइंस की वजह से हर साल हज़ारों मेगावाट बिजली ज़ाया होती है, जिससे गर्दिशी कर्ज़ों में अरबों रुपए का इजाफा होता है। गर्दिशी कर्ज़े बिजली की पैदावार में कमी की बड़ी वजह बताए जाते हैं। ये विंटर मंथ्स में ज़्यादा होता है क्योंकि यू डाइवर्ट ऑन द ऑयल, और ऑयल की आप पेमेंट कर नहीं सकते हैं। दूसरा ये है कि आपकी जो यूनिट चार्जेस जो कैपेसिटी है वो आपके जैसे जैसे प्लांट बीमार होते जा रहे हैं आपकी ऑयल का कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है। 30 साल पहले तक पाकिस्तान में 2/3 बिजली पानी से बनती थी और 1/3 तेल से। अब ये मसावात उलट हो गई है। पैदावारी निज़ाम में ये बुनियादी तब्दीली माहिरीन के मुताबिक बिजली के मौजूदा बहरान की सबसे बड़ी वजह है। फरहत जावेद, BBC न्यूज़, इस्लामाबाद। इसी मौजू पर फरहत जावेद ने वफाकी वजीर पानी और बिजली ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से बात की और पहले उनसे ये पूछा कि लोड शेडिंग और गर्दिशी कर्जों में इजाफे की वजह है क्या? डिफरेंट रीजंस हैं और उसमें तो एक तो ये है कि जो टैरिफ है हमारा इन आवर ओपिनियन वो रियलिस्टिक नहीं है, जो कि आप एक ही टैरिफ जो है वो उसको अप्लाई करें। दैट इज़ वन रीज़न। सेकेंडली जो सब्सिडी जो है हमें जो है वो आज से 4 साल कबल जो है कई 100 बिलियन की सब्सिडी इस सेक्टर को मिलती थी, जो अब तकरीबन रिड्यूस होके जो है वो 100 के करीब जो है रह गई हुई है। लोड शेडिंग क्यों करनी पड़ रही है? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप इसकी कोई एक बड़ी वजह बताएं तो वो क्या वजह है? आप बिजली को जिस तरह कोई एक चीज़ होती है, जो चीज़ महंगी हो या कम मुयस्सर हो, आप उसको जिस तरह इस्तेमाल करते हैं उस तरह इस्तेमाल करें। आपको अपने सिस्टम से मुफ्त बिजली मिल जाएगी, लेकिन कोई तवज्जो नहीं है क्योंकि ये एक स्लो चेंज है। स्लो से मेरा मुराद है कि पता भी नहीं लगेगा कि किस तरह ये चेंज आई है। तो हम लोग जो है ज़रा थोड़ा चाहते हैं कि भाई लोगों को पता भी लगे ये बिजली कहाँ से आई है, फ़लाने प्लांट से आई है, फ़लाने प्लांट का इफ्तिताह हुआ है, ये इस तरह सारा सिलसिला। लेकिन दिस इज़ वन थिंग जो परमानेंटली आपको ये इसका सलूशन दे सकती है। ये भी कहा जाता है कि शोहरत तो बहुत मिलती है लेकिन आवाम पे महंगी बिजली मसलत कर दी जाती है। नहीं, महंगी नहीं है बिजली जो है हमारी, जो हाइडल है या LNG की जो है या कोल की बिजली, ये महंगी नहीं है। अभी बैकअप पे हम क्या कर रहे हैं? रिन्यूएबल सोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं पावर जनरेशन के लिए। इस वक्त रिन्यूएबल जो है ना, अगर स्ट्रिक्टली रिन्यूएबल अगर आप हाइडल को नहीं बीच में इंक्लूड करते तो विंड और सोलर में जो हमारी इस वक्त जो है सोलर जो है वो पीक कर जाती है 250-300 मेगावाट हमें दोपहर को दे रही होती है। मुल्क से लोड शेडिंग की जब हम बात करते हैं तो
क्या समझते हैं कब इसका मुकम्मल और मुस्तकिल तौर पे ख़ात्मा होगा? इस साल के आखिर में लोड शेडिंग का इंशाल्लाह ताला मुकम्मल ख़ात्मा हो जाएगा, लेकिन जो लोग हमें बिल नहीं अदा करते हैं उनको बिजली नहीं बेचेंगे। तो जो असम्बली में बैठे हुए हैं नादहिंदा, जो बाहर लोग आम आवाम में नादहिंदा हैं, जो इदारे और जो हुकूमतें नादहिंदा हैं, आपकी सूबाई हुकूमतें हैं, सिंध इस वक्त हमारा उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। 27 अरब रुपया हमने उनसे वसूल किया है, जो हमारे लिहाज से ज़्यादा था। KP के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, पंजाब के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बलूचिस्तान के साथ प्रॉब्लम है। वो बेसिकली अगेन ट्यूबवेल्स का प्रॉब्लम है। पंजाब में भी जो प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत जो हमारा ट्यूबवेल्स का प्रॉब्लम है, लेकिन सिंध और इनके साथ हमारे जो गवर्नमेंट के जिनका आपने जिक्र किया वो इशू सेटल हो गए हैं KP के साथ और सिंध के साथ। वफाकी वज़ीर पानी और बिजली ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। और अब एक नज़र दीगर अहम खबरों पर। वस्ती मिस्र में क़िब्ती मसीहों की एक बस पर फायरिंग करके कम से कम 26 अफराद को हलाक और 25 से ज़्यादा को ज़ख्मी कर दिया गया है। यह वाक़या दारुल हुकूमत कायरा से 220 किलोमीटर दूर सूबा मनिया में उस वक्त पेश आया जब मसीही अफराद सेंट सैमुअल खानकाह जा रहे थे। बरतानिया की लेबर पार्टी के रहनुमा जेरेमी कोर्बिन ने कहा है कि अगर उनकी हुकूमत कायम होती है तो मुल्क की खारजा पॉलिसी में तब्दीली करके उसे ऐसा बनाया जाएगा कि जो कि मुल्क में शिद्दत पसंदी के खतरे को बढ़ाने के बजाय घटाए। आइंदा माह होने वाले इंतखाबात से कबल पार्टी का मंशूर पेश करते हुए मिस्टर कोर्बिन ने कहा कि माहिरीन बरतानिया की गैर मुल्की कार्रवाइयों का ताल्लुक अंदरूनी शिद्दत पसंदी से जोड़ते हैं। अफगानिस्तान के सूबा कंधार में एक फौजी कैंप पर तालिबान के हमले में 15 अफगान फौजी हलाक और 5 जख्मी भी हुए। इसी इलाके में सिर्फ 3 रोज कबल एक हमले में 10 अफगान फौजी मारे गए थे। BBC उर्दू के प्रोग्राम सहरवीन में आगे चलकर देखिएगा किस तरह शिद्दत पसंद गिरोह अल-शबाब औरतों को जिनसी और घरेलू तौर पर काम के लिए गुलाम बनाता था। और टेक्नोलॉजी बुलेटिन क्लिक में आपकी मुलाकात दुबई के रोबोट पुलिस ऑफिसर के साथ। BBC उर्दू के प्रोग्राम सहरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। BBC की एक इन्वेस्टिगेशन ने केनिया में औरतों की बर्दफरोशी के कारोबार की नकाबकशाई की है। इसमें शिद्दत पसंद गिरोह अल-शबाब औरतों को जिनसी और घरेलू काम के लिए सोमालिया ले जाकर गुलाम बना लेता है। ऐसी कई खवातीन के जो अल-शबाब के चंगुल से निकलने में कामयाब हुई, उन्होंने फरार होने के बाद पहली बार अल-शबाब कैंप्स में गुजरे वक्त की तकलीफदेह दास्तानें सुनाई हैं। रिपोर्ट खदीजा आरिफ की ज़बानी। इस लड़की की उम्र सिर्फ 19 साल है। ये लड़की, जिसे हम फेथ बुलाएंगे, छोटी उम्र में गुलामी के दौरान इंतहाई तकलीफदेह हालात से गुजरी है। इन्हें अच्छी नौकरी की उम्मीद दिलाकर बम्बासा से ले जाया गया, मगर ये अल-शबाब के चुंगल में फंस गई। हमें कुछ पानी दिया गया था, मगर पानी में मनशियात मिलाई गई थी। मुझे नहीं मालूम आगे क्या हुआ। मैं एक कमरे में पहुंची और अभी हवास भी बहाल नहीं हुए थे कि हमें रेप किया गया। इन्होंने दरमियानी रात इस बच्ची को जंगल में तने तनहा जन्म दिया। वो 3 साल वहाँ रहे और फिर एक अधेड़ उम्र हकीम ने उन्हें बाजियाब कराया। फेथ अकेली नहीं, कम से कम 20 और ख़वातीन जिनसे हमारी टीम मिली, जिन्हें ज़बरदस्ती सोमालिया ले जाया गया और जिनसी और घरेलू काम के लिए ग़ुलाम बनाया गया। ये ख़वातीन हिम्मत करके वहाँ से रात के अंधेरे में भागी। तकरीबन सभी ये कहती हैं कि उन्होंने कई दिन घने जंगल में पैदल सफ़र किया। हमारे ख्याल में वो बोनी नामी जंगल है। नीचे घना जंगल है और इसकी निगरानी करना यकीनन मुश्किल काम है, मगर फ़िज़ा से देखें तो रास्ते नज़र आते हैं और हमें बताया गया कि जंगजू इस रास्ते को कीनिया और सोमालिया के दरमियान आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मगर सब ख़वातीन मर्ज़ी के ख़िलाफ़ सोमालिया नहीं गई। सारा ने अपने शौहर, जो एक जंगजू हैं, उनके हमराह गिरोह में शमूलियत इख्तियार की, मगर जब उनके शौहर गायब हुए तो उन्होंने अपने आप को गैर महफूज महसूस किया और वो भाग निकली। उन्होंने अल-शबाब के दरमियान रहते हुए गिरोह की सरगर्मियों के बारे में बहुत कुछ जाना। हमारे कैंप में ऐसी ख़वातीन भी थीं जिन्हें औरतों को भर्ती करने के लिए भेजा जाता था ताकि वो मज़ीद औरतों को सोमालिया लेकर आएं और कैंप में तादाद बढ़े और वो हामला हों और बच्चे पैदा करें। जिन ख़वातीन से इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारी टीम मिली, उनकी तादाद शायद बर्दा फरोशी में फंसी ख़वातीन से बहुत कम है, मगर हुक्काम को भी उनकी सही तादाद का अंदाज़ा नहीं।
मैं आपको आदादो शुमार नहीं दे सकता क्योंकि ये काम बड़ी खामोशी से किए जाते हैं। कोई मंजर आम पर नहीं आता कि मुझे सोमालिया में नौकरी दी गई है या ये कि वो बर्दा फरोशी का शिकार हैं। लोग छुपते हैं। इन्हें डर है कि माशरे में इन पर तोहमतें लगेंगी और इन्हें हुक्काम पर भी भरोसा नहीं। इनकी मदद के लिए कोई नहीं है। अल-शबाब का निशाना बनने वाली ये ख़वातीन गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रही हैं और कीनिया में बहुत सी ख़वातीन ख़ास तौर पर साहिली इलाकों में बसने वाली बर्दा फरोशों के लिए आसान हदफ हैं। जुर्माने के नोटिस भेजने वाला रोबोट पुलिस ऑफिसर, कूड़ा करकट उठाने वाला ट्रक जो खुद ही घर घर जाए कूड़ा उठा लाए, और सैमसंग के स्मार्टफोन के लिए एक नई प्रॉब्लम। इस हफ्ते का टेक्नोलॉजी बुलेटिन क्लिक आज नुसरत जहां के साथ। दुबई ने अपने पहले रोबोट पुलिस अफसर की नकाबकुशाई कर दी है। ये रोबोट न सिर्फ अपने इंसानी साथियों को जराइम की इत्तला और वीडियोस भेज सकता है, बल्कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्माना और मुजरिमों के चेहरों की शिनाख्त भी कर सकता है। अभी तक ये रोबोट सिर्फ अरबी और अंग्रेजी में बात करता है, लेकिन कहते हैं कि आगे चलकर ये रूसी, चीनी, फ्रांसीसी और स्पेनिश भी बोलने लगेगा। गाड़ियां बनाने वाली कंपनी वॉल्वो ने ऐलान किया है कि वो कूड़ा उठाने वाले एक ऐसे ऑटोमेटिक ट्रक पर काम कर रही है जो खुद ही घर घर जाकर कूड़ा इकट्ठा कर लेगा। इस ट्रक में ऐसे कई सेंसर्स लगे होंगे जिनसे ये गलियों में अपने रास्तों का तयन खुद ही कर लेगा। ताहम इस दौरान इसकी हर हरकत पर नजर रखी जाएगी कि कहीं ये ईंधन और तवानाई जाया तो नहीं कर रहा। पिछले दिनों गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम अल्फागो और मसनूई ज़हानत के दुनिया के नंबर 1 सिस्टम वनगो के दरमियान एक मुकाबला हुआ जो अल्फागो ने जीत लिया। अल्फागो ने एक कदीम चीनी खेल के पुराने मुकाबलों में खिलाड़ियों की चालों को देखकर इस खेल पर महारत हासिल कर ली। अगरचे ये मौजूदा इंसानी चैंपियन के लिए अच्छी खबर नहीं थी, लेकिन इसमें तिब और साइंस की दुनिया के लिए खुशखबरी ये है कि अब मुस्तकबिल के कंप्यूटर किसी पेचीदा सूरत हाल का बेहतर तज्जिया कर सकेंगे। और आखिर में हाईटेक आलात बनाने वालों के लिए ये याद दहानी कि उनकी बेश कीमत मसनूआत को हैक करने के लिए निहायत कम कीमत हथकंडे बनाने में देर नहीं लगती। सैमसंग को एक मर्तबा फिर मुश्किल का सामना है, क्योंकि एक यूरोपीय हैकर ग्रुप ने सैमसंग के नए फोन में नस्ब आइरिस स्कैनर को असली आँख की बजाय आँख की तस्वीर और कॉन्टेक्ट लेंसेज दिखाकर फोन को अनलॉक करने का एक तरीका ढूंढ लिया है। इस हवाले से सैमसंग का कहना था कि ये बात उनके इल्म में आ चुकी है। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @शफी_नकी_जामई। इसके साथ ही से अभी इख्तिताम को पहुंचा। मुझे पूरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।